Hello, good morning to everyone. Good morning, sir. Sound is Good clear? morning, sir. Sound is clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So let me first mute you all. Okay. So today uh, I have to give you important questions. And before giving you important questions, let me once again uh, recheck chapter 2. Do we have completed all the topics? So a small teaser revision. Okay. So once again, what is migration we have taken? There is a stream of migration we have completed: rural to rural, rural to urban, urban to urban, urban to rural. Then we have done causes of migration. Okay, causes of migration. Then push factor, we have done it. Consequences of migration, economic consequences, demographic consequences. And in demographic, I told you positive, negative, social consequences. Again, you have to prepare the notes for these all various type of consequences with their positive side and their negative side. Okay. Then environmental consequences. Yesterday we have completed, and uh, there are two new headings we have discussed in some other way. But let us see what this book says. Lifetime migrant. Lifetime migrant means if a person's place of birth is different from the place of census, then he is known as lifetime migrant. Means a person belongs to Bihar, but he is in a good job, he is in good business, and he is now living in Delhi. His place of birth is Bihar or other country, but now he is living in India. So, and he will live here. Now he will not go anywhere else. He is settled in here, India or Delhi. So lifetime migrant. Okay. And the second is migrant by place of last residence. Like in government jobs, there are transfer after 2 3 years. So there is also migration. So if a person's place of last residence is different from the place of immigration, then he is known as migrant by place of the last residence. 10 साल पहले मेरठ में रहता था, बिजनेस करता था, जॉब करता था, काम धंधा करता, अब छोड़ के कहाँ गया? दिल्ली. ठीक है. तो रेजिडेंस के हिसाब से माइग्रेशन हम देखते हैं और बर्थ प्लेस के हिसाब से हम माइग्रेशन देखते हैं. ठीक है. One thing more I want to discuss. It is states receiving high number of immigrants. States receiving high numbers of immigrants. वो कौन से स्टेट्स हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा पीपल बाहर से आते हैं and they migrates from Bihar to Delhi. Delhi is not a complete state. We count in union territory, although it's work as a state, है ना? तो इसका आंसर है तो महाराष्ट्र. ओके, सब नोट करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है एक नंबर के लिए. तो महाराष्ट्र इज द लार्जेस्ट माइग्रेंट रिसीविंग स्टेट. Okay, and you have seen example Bandra. A lot of people wants to go to back to their states, as Mumbai is economic country of India, and large number of industries are there, so large number of jobs are there, more than in any city in India. So most the high number of migrants are found in
Maharashtra. And beside Maharashtra, then it comes to Delhi, Gujarat, and other states. Okay. So this was I am talking about immigrants. आने वाले. Now we are talking about states with high out migrants. It's states with high out migrants. उत्तर प्रदेश से बाहर जाने वाले, बिहार से बाहर जाके जॉब करने वाले, काम करने वाले, कौन सा स्टेट है जहां सबसे ज्यादा आउट माइग्रेट होता है? आउट within the country. Within the country, when the migration is going one place to another place, of that place to our place, so that is in migrant or out migrant. Okay, so within the country it is in migrant or out migrant. But when we talk about for the other countries, दूसरे कंट्री से हमारे यहाँ आ रहे हैं तो आई माइग्रेशन, आई डबल एम, ठीक है, यानी कि माइग्रेशन के आगे आई एम लगा देंगे, आई डबल एम हो जाएगा. और इंडिया से बाहर जा रहे हैं हम तो क्या ई माइग्रेशन, माइग्रेशन के आगे ई लग जाएगा. ठीक है. ओके. सो तो आउट माइग्रेंट्स में जो नंबर 1 स्टेट है वो कौन सा है? उत्तर प्रदेश. दैट इज उत्तर प्रदेश. ओके. और उत्तर प्रदेश से पर ईयर जाते हैं 2.6 मिलियन पीपल. 2.6 मिलियन पीपल उत्तर प्रदेश से बाहर जाके जॉब कर रहे हैं. दे आर आउट माइग्रेंट्स. और इन माइग्रेंट्स में महाराष्ट्र में जहाँ जॉब करने के लिए आते हैं. एंड महाराष्ट्र रिसीव्स 2.3 million का मतलब 23 lakhs. Okay, in migrants. So this was something other data I want to share with you. And now let's start doing the important questions. Sometimes voice drops either from my side or from your side, so nothing to bother. I am recording all the live classes here and I am putting on the YouTube channel, so you can see there, you can subscribe there, and I am sending you link also, so directly you can watch there. You can note down the question from there. And till today, it's so many days are completed, but none of you are writing the questions and sending on the WhatsApp. I have asked you a lot of time that if some of the students are having the problem of connection problem, they can't hear my question clearly. Sound drops, signal drops. So please, 3-4 स्टूडेंट्स ओनली, ज़्यादा नहीं. आप फैसला कर लीजिए, आप एक ग्रुप बना लीजिए 2 या 3 का या 4 का, कि हम तीनों क्वेश्चंस लिखेंगे, आपस में टैली कर लेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन हमारे पास नहीं है. वो जो टैली करके फिर पूरे क्वेश्चन हो जाएंगे हम 3 के या 4 के. ओके. तो सारे क्वेश्चंस यू पुट ऑन द व्हाट्सएप. तो उससे क्या होगा कि बाकी बच्चों के लिए आसानी हो जाएगी. अदरवाइज यू हैव टू वॉच द वीडियो वंस अगेन. ओके, नो प्रॉब्लम. So let's start. For 1 mark, question number 1. Why do people migrate in large number from rural to urban areas in India? Very simple. If you want to write in short the same question, later you can complete in the language. Migration from rural to urban, and then question mark. You know? Naturally, we have discussed a lot. The largest migration is from rural to urban, गांव से शहर, है ना? And the reason is that there are so many push factors in the village. There are so many push factors in the village which push the people from the village. यार यहाँ से छोड़ो, यहाँ कुछ नहीं हो सकता, ना जॉब है, ना काम है, ना धंधा है ना? Poverty is there, high population pressure is there, lack of basic infrastructure is there. Okay, and there is no health care, there is no education, there is no regular work. So these all are the push factors from rural areas, but they are the pull factors for big cities. और ये सब big cities में हैं, तो the population moves from there. Next is
Name the urban agglomeration. This is a technical word. Note करेंगे सारे सब लोग. Name the urban agglomeration. A double G L O M E R A T I O N. Name the urban agglomeration. A double G L O M E R A T I O N. Of India that has the highest number of intrastate migration. Intrastate migration. Once again, name the urban agglomeration of India that has the highest number of intrastate migration. Intrastate और एक होता है interstate. Interstate from one state to another state. From one state to another state is interstate. I-N-T-E-R. Intra. I-N-T-R-A. I-N-T-R. Intrastate. Within the state. Okay. एग्जाम्पल महाराष्ट्र का लें तो पुणे से मुंबई. एग्जाम्पल हरियाणा का लें तो इट इज सोनीपत टू पानीपत या पानीपत टू अंबाला within the state. We take from the UP example, then Meerut to Ghaziabad, intrastate. But if from Mumbai, sorry, if you're from UP to Haryana, yeah, Haryana to Punjab, okay, from Amritsar to Sonipat or Sonipat to Ghaziabad, from one state to another is interstate. This is the difference of interstate and intrastate, okay. So interstate migration highest number कहाँ पर है? Answer is Mumbai. Answer is Mumbai. Urban agglomeration, Mumbai. Next. Next. Name the process of migration. Name the process of migration from plains area to pastures or mountain. From plain area to pastures or mountain during summer. Name the process of migration from the plain areas to pasture on mountains during the summer and from mountain pasture on the top to valleys in winter. There is a migration on mountains by the people. In winters, they move, they come from higher place to valleys, and in summer season, they move to the higher place, high altitude on the mountains. This process is known as dash, and the answer is transhumance. Transhumance, okay? T-R-A-N-S, humans, H-U-M-A-N-C-E. Next, which stream of migration is dominated by male migrants in India? Which stream of migration is dominated by male migrants in India? Stream of migration. ठीक है, तो इसमें आपको ढूंढना पड़ेगा सबसे ज्यादा मेल माइग्रेंट किसमें है. कल डिस्कस किया था बहुत सारा. ठीक है, मेल यूज्ड टू मूव इन द सर्च ऑफ जॉब्स. ओके, सो फ्रॉम रूरल टू अर्बन, तो स्ट्रीम कौन सी आएगी? फ्रॉम रूरल टू अर्बन. सबसे ज्यादा मेल जो डोमिनेट करते हैं इसमें करते हैं. ओके, नेक्स्ट, लेट अस टेक नेक्स्ट क्वेश्चन. It's a very simple question, but आप you see the language, थोड़ा सा घुमा दिया है ना आपको, थोड़ा सा परेशान करने के लिए, but it's a simple question. Explain the causes of migration. Explain the causes of migration of unskilled migrants. Of
unskilled migrants from rural to urban areas in India. From rural to urban areas in India, and their suffering. And their suffering. Once again, explain the causes of migration of unskilled migrants from rural and urban areas in India and their sufferings. एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन पूछ लिए, कॉजेस पूछ रहा है, जो अनस्किलफुल माइग्रेंट्स हैं जो गांव से शहर की तरफ भागते हैं, और फिर उनकी सफरिंग क्या होती है. ठीक है, तो मेन कॉजेस वही हैं जो अनस्किलफुल हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, है ना. तो जो कुछ फैक्टर्स बन जाते हैं इनके, तो लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट है नंबर 1. नंबर 2, लैक ऑफ इनकम जनरेटिंग अपॉर्चुनिटीज, कम है कमाने के धंधे तरीके, जॉब, काम वगैरह गांव में कम है. ओके, नेक्स्ट इज फूड इनसिक्योरिटी ड्यू टू लॉन्ग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी. अगर एक साल में 2 क्रॉप्स हो रही हैं, गेहूं हो रहा है, चावल हो रहा है, इस समय गेहूं काट रहे हैं, तो 3 महीने का ब्रेक है, अप्रैल मई जून कुछ नहीं होगा. देन दे विल सो इन द जुलाई राइस, और आफ्टर 3 महीने के बाद, तो 3 महीने वेट करना पड़ता है फॉर ए क्रॉप. सो इट इज ए लॉन्ग वेटिंग पीरियड फॉर द पुअर पीपल्स हु अर्न वेरी लेस. तो वो कब तक वेट करेंगे, कब तक उनका नंबर आएगा. अगर वो खेती करते हैं तो फूड बनाने में इट टेक्स मोर देन 3 months. ओके, नेक्स्ट इज पॉवर्टी, सबको मालूम है, स्टारवेशन सबको मालूम है. So these are the sufferings. These are the main causes also. These are the main causes. You can write in the main causes. And suffering में आप ले सकते हो, suffering from migration from rural to urban areas. ठीक है, क्या प्रॉब्लम आती है, माइग्रेट तो कर जाते हैं, शहर में जाते हैं, बट दे फील डिप्रेशन बिकॉज वो फैमिली से और बच्चों से दूर होते हैं, यहाँ काम कर रहे हैं. लॉट ऑफ पीपल्स, मेल पीपल्स आर वर्किंग हियर, है ना, एंड देयर फैमिलीज आर लिविंग इन देयर विलेजेस, सो दे फील डिप्रेस्ड. इसके अलावा फीलिंग ऑफ डिजेक्शन, हर जगह काम नहीं मिलता इतनी आसानी से, बड़ा मुश्किल से काम मिलता है, कई दिन तक बिना काम के रहते हैं. हम बात किसकी कर रहे हैं, अनस्किलफुल की बात कर रहे हैं, है ना. ये धोबी है, रिक्शा वाला है, चाय वाला है, फ्रूट्स वाला है, प्लम्बर इज देयर, इलेक्ट्रिशियन इज देयर, उनको रोज काम नहीं मिलता है, तो फिर वो कहीं काम करने बात करते आते हैं, पैसे बात बिगड़ जाती है, डिजेक्शन. ओके, और बस इतनी बहुत है, इसमें ज़्यादा नहीं लिखने की होता है. नेक्स्ट, लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन. सिंपल क्वेश्चन, ओनली फॉर प्रैक्टिस, नोट कर सकते हो आप, छोड़ने का भी कोई फायदा नहीं है. एक्सप्लेन एनी 3 पुश फैक्टर्स दैट हैव कॉज्ड रूरल टू अर्बन माइग्रेशन इन इंडिया. एक्सप्लेन एनी 3 push factors that have caused rural to urban migration in India. Same question अभी पहले किया था हमने, cause of migration, अभी कई सारे क्वेश्चन किए थे, तो push factor बताने इसमें, तो it's very easy. और you have to write these questions because these are the questions from the CBSE board. तो you can know, you will understand कि language क्या होती है और किस फॉर्मेशन में क्वेश्चंस आते हैं. ओके, तो नेक्स्ट इज व्हाई डू पीपल माइग्रेट, है ना. व्हाई डू पीपल माइग्रेट, state the 4 streams of migration in India. Why do people migrate, क्यों migrate करते हैं. और second part is state the 4 streams of migration in India. इस 4 streams में हमेशा ध्यान रखना, जब भी स्ट्रीम्स वर्ड आता है उसे अंडरलाइन करो, जिससे आपको दिमाग में क्लिक करे कि आपको इसके अलावा कुछ नहीं लिखना. एंड द आंसर इज रूरल टू रूरल, अर्बन टू अर्बन, रूरल टू अर्बन एंड अर्बन टू रूरल. ओके, इसके अलावा कुछ नहीं लिखना. नहीं तो जल्दी में बच्चे को क्वेश्चन के आंसर आते हैं, बट दे यूज्ड टू राइट
टाइप्स ऑफ माइग्रेशन इन द क्वेश्चन ऑफ स्ट्रीम्स ऑफ माइग्रेशन, ये जो गड़बड़ होती है, मिसमैच होता है, तो यू हैव टू take precautions that you do not have to write types of migration in streams of migration. Streams of migration अलग है, types of migration अलग है. Okay. Then टॉपिक हम निकल गया था, उसका क्वेश्चन है describe in brief the consequences of migration in India. Describe in brief the consequences of migration in India. फिर हमने डिस्कस किए थे डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, है ना, और आप इसमें कुछ पॉजिटिव पॉइंट दे सकते हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट दे सकते हैं. सेम क्वेश्चन ये माइग्रेशन के लिए पूछा है, लेकिन वो डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं, कौन सा कॉन्सिक्वेंसेस पूछ सकते हैं, लाइक एक्सप्लेन एनी 3 इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ माइग्रेशन ऑफ पीपल इन इंडिया. ये 2008 में आया था, पहला वाला 9 में आया था. once again एक्सप्लेन एनी 3 इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस. अब बिल्कुल क्लियर है कि कौन सा कॉन्सिक्वेंसेस पूछ रहा है. इकोनॉमिक, पैसे की बात कर रहे हैं, ऑफ माइग्रेशन ऑफ पीपल इन इंडिया. Consequences of migration are discussed below. Number 1, positive. Positive में हम फर्स्ट पॉइंट देखते हैं. Remittances are important for economy of a country as migrants sends remittance to their family members. Remittance, the people who are working out of India, है ना, इंडिया के लोग लेकिन जो बाहर काम कर रहे हैं, but their families are living in India, तो वो अपने वहाँ पैसे बचाते हैं, दे सेंड टू इंडिया. दुबई में लोग रह रहे हैं, सऊदी अरब में रह रहे हैं, अमेरिका रह रहे हैं, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, एंड पीपल वहाँ रहते हैं, लेकिन कुछ पैसे यहाँ अपनी फैमिली के लिए भेजते हैं, ठीक है ना, फैमिली के खर्चों के लिए भेजते हैं. ओके, तो इससे कंट्री की जो अकाउंट में जो डॉलर्स आते हैं, फॉरेन एक्सचेंज नोन एज फॉरेन एक्सचेंज, इट इंक्रीज. क्योंकि डॉलर हमारे घर में नहीं आते हैं, कोई हमें बाहर से भेजेगा तो इस डॉलर बैंक में भेजेगा, एंड जब बैंक में हम जाएंगे तो बैंक विल कन्वर्ट इनटू द रुपीज एंड वी विल गेट द रुपीज. तो डॉलर कहाँ जाएगा? डॉलर विल गो टू द आरबीआई. तो आरबीआई वो गवर्नमेंट के अकाउंट में जाता है. तो दिस इज कॉल्ड रेमिटेंस, द मनी व्हिच इज सेंट बैक टू देयर ओन कंट्री, रेमिटेंस. ओके, तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज बढ़ता है. तो वी आर थैंकफुल हु आर वर्किंग आउट ऑफ इंडिया एंड सेंडिंग द मनी टू देयर फैमिलीज. द कंट्री इज आल्सो थैंकफुल, आरबीआई इज आल्सो थैंकफुल, प्लस द फैमिली मेंबर आल्सो. ठीक है. और one more point is green revolution in the rural area of Punjab, Haryana, Uttar Pradesh was successful because of migrants from rural areas to eastern. Yes. Next point is green revolution, economic consequences. नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सेसफुल किसकी वजह से हुई थी? वर्कर की वजह से हुई थी, लेबर की वजह से हुई थी. और अगर लेबर नहीं होती तो एग्रीकल्चर जो पैसा वाले वो लोग नहीं कर सकते अकेले. दे रिक्वायर्ड लॉट ऑफ लेबर इन एग्रीकल्चर, एंड दिस लेबर was migrated from Bihar, Odisha, Eastern Uttar Pradesh to Haryana, Punjab. Okay, so it also is one of the positive economic consequences. 2 पॉइंट पॉजिटिव क्या हो गए? इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस क्वेश्चन है, टॉपिक है. नेगेटिव की बात करते हैं. नंबर 1 इज ओवरक्राउडिंग. जो माइग्रेशन है वो हमारा कोई रेगुलेट नहीं है, गवर्नमेंट ने फिक्स नहीं कर रखा कोटा कि कितने लोग कहाँ जाएंगे. ठीक है, ऐसा फिक्स नहीं है कि 1 लाख बॉम्बे जाएंगे, 1 लाख दिल्ली जाएंगे, 2 लाख पंजाब जाएंगे, 3 लाख हरियाणा जाएंगे. नो. तो गांव में क्या चलता है? भेड़ चाल. एक गांव से एक आदमी बॉम्बे गया, वो अच्छे पैसे अर्न कर रहा है, तो पूरा कुनबा उस गांव में चले जाएगा, सारा गांव भी जाना शुरू कर देगा. अगर 2-4 बच्चे गुजरात चले गए और वहाँ सेटल हो गए, दे आर अर्निंग लॉट ऑफ मनी, मकान बना लिया, दुकान बना दी और डायमंड्स का काम कर रहे हैं, तो गांव से सारा लोग वहीं भागना शुरू कर देंगे और उसके थ्रू दे विल ट्राई टू गेट द जॉब्स. तो इससे क्या होता है? ओवरक्राउडेड. कहीं पर तो बहुत ही ओवरक्राउडेड हो जाते हैं लेबर्स, अनस्किल्ड वर्कर, और कहीं पर उनकी कमी रहती है. ओके, ये नेगेटिव पॉइंट्स है, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस, क्योंकि ये अनरेगुलेटेड माइग्रेशन है. अनरेगुलेटेड, इसमें कोई कंट्रोल नहीं है,
एंड दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, गवर्नमेंट ने आज तक ध्यान नहीं दिया। अगर गवर्नमेंट उसका भी एनपीआर मेंटेन करे, है ना, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, इसका भी एनपीआर मेंटेन रजिस्टर करे, इसका भी रिकॉर्ड मेंटेन करे कि किस स्टेट में, किस शहर में कितनी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, अनस्किलफुल। अभी जो हमारा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो डाटा लिखता है वो सिर्फ पढ़े लिखों करता है। आप पढ़े लिखे हो तो अपना नाम लिखवा दो, यू आर अनएम्प्लॉयड। एक एक्सचेंज ऐसा भी होना चाहिए जो पढ़े लिखे का नहीं होना चाहिए, अनस्किल्ड वर्कर्स का हो। अगर ऐसा हो तो वहाँ पर मेंशन हो कि आई वांट अ प्लम्बर जॉब, आई वांट इलेक्ट्रिकल जॉब, और वो गवर्नमेंट की साइट हो और उसमें सीधे पता चल रहा हो कि 1 लाख गुजरात को चाहिए, 2 लाख महाराष्ट्र को चाहिए, 3 लाख दिल्ली को चाहिए, तो उतने वहाँ अप्लाई करेंगे। जैसे करेंगे स्टॉप हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली उधर भेज देगा कि आप उधर चले जाओ। तो इट विल बी अ वेरी गुड आइडिया। ओके, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए लेकिन नहीं सोचती। चलिए आगे चलते हैं। नेगेटिव पॉइंट नंबर 2, development of unhygienic slums. Yes, this is the basic problem, the main problem. And economic consequences की जब भी बात करेंगे हम, ठीक है, माइग्रेशन की बात करेंगे, तो this is the worst thing we are having, the slums. And we know the largest slums of Asia is in Mumbai, known as Dharavi. Okay, the largest slum of Asia, of India, is known as Dharavi. Okay, so ये प्रॉब्लम है स्लम्स की, अनहाइजीनिक होते हैं। इनकी बस्ती में जाओगे बहुत गंदगी होगी ना, पानी होगा इनके लिए ना, सैनिटेशन की प्रॉब्लम होगी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। लेट अस स्टॉप दिस स्मॉल क्वेश्चंस, नाउ वी विल कम टू द 5 मार्क्स क्वेश्चन। अभी तक हमने किए थे 1 मार्क्स के क्वेश्चन किए थे। 1 मार्क्स में बहुत सारा लिखना पड़ता है। 1 मार्क्स का आप ये मत सोचो कि आपको कम लिखना पड़ेगा। हाँ, बट यू आर लकी, नाउ यू विल हैव एमसीक्यू फॉर 80 मार्क्स, उसका सीधे आप 3 मार्क्स पर जाओगे। तो ये क्वेश्चंस के अगर आप आंसर बड़े देख रहे हो, मैं यहाँ 1 मार्क्स बोल रहा हूँ क्योंकि पुराने टाइम में 1 मार्क्स आते थे, बट नाउ दे कैन कम इन 3 मार्क्स आल्सो इफ द आंसर इज क्विक। तो जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं आंसर्स पूरे कर रहे हैं इसलिए, जिससे यू should be prepared for 3 marks question also. Okay, now I am moving for 5 marks question, and for this first question is based on economic consists, so I am leaving, so I will take some other question. Yes, let us take this question. In 2016 Delhi CBSE, explain why the causes of male and female migration are different. Explain why the causes of male and female migration are different in India. Find out the environmental consequences of migration. Find out the environmental consequences of migration. Once again, explain why the causes of male and female migrations are different in India. Causes different है मेल के फीमेल के, पूरे वर्ल्ड में होंगे, इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड में डिफरेंट होंगे। एंड फाइंड आउट द एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ माइग्रेशन। अब देखो यहाँ पर इसने 2 क्वेश्चन एक में जोड़ दिए। एक ही क्वेश्चन में ही इज आस्किंग 2 क्वेश्चंस। एक तो कॉजेज ऑफ मेल एंड फीमेल माइग्रेशन आर डिफरेंट इन इंडिया, और दूसरा है एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज। तो यू हैव टू राइट 2 आंसर्स। ओके, there is some data, please note down in the answer. And we are talking about causes of male and female migration are different in India according to census 2001. And 2001 हमने कल डिस्कस किया था, if you remember those pie charts, same data is here. 65% women migrates because of, कुछ याद आया? 60% women migrates because of marriage. Okay, जॉब की बात करें तो only, next point, only 3% women migrates for employment due to insecurity. हमारे देश में क्या है? Due to insecurity, the family
यूज टू सेलेक्ट, अगर बच्चे की 2 जॉब लग रही हैं, दिल्ली के गर्ल की 2 जॉब लग रही हैं, वन इज इन मुंबई, सेकंड इन दिल्ली, सेकंड इन नोएडा, तो घर वाले क्या सेलेक्ट करते हैं, नहीं यार नोएडा वाली कर लो, दिल्ली वाली कर लो, बॉम्बे इज टू फार एंड हाउ यू विल लिव देयर, आप अकेले कैसे रहोगे। ओके, जबकि ये सब बॉयज के साथ नहीं है। इसके रिवर्स देखते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट मेल्स, 38% males migrate due to employment or work. ओके, तो एम्प्लॉयमेंट की जब बात करते हैं तो मेल 38% माइग्रेट करते हैं एंड द फीमेल्स माइग्रेट करते हैं ओनली 3%। दिस इज द डिफरेंस। तो जब आप लिखेंगे एम्प्लॉयमेंट मैरिज, तो उसी के सामने आप मेल फीमेल का डाटा लिख दोगे एक जगह। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट मैरिज, जहाँ फीमेल 65% माइग्रेट करती हैं मैरिज की वजह से, मेल्स माइग्रेट करते हैं सिर्फ 2%। और सोचोगे यार ये हम तो जाते नहीं कहीं, ऐसे कैसे हो जाएगा, है ना। तो हो सकता है अभी आज यहाँ रह रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, और मैरिज होते ही आपकी जॉब लग गई, अमेरिका लग गई, सऊदी अरब लग गई, है ना, और यू या बेंगलोर चले गए, बॉम्बे चले गए, दिस हैपन सडनली। उसके केसेस बहुत कम है, या घर जमाई बनना बहुत कम है, ठीक है। लेकिन मेल भी शिफ्ट करते हैं फीमेल के घर, तो ऐसा कुछ जगह मिलता है, स्पेशली मेघालय। मेघालय में शादी के बाद लड़का शायद यूके के जाके रहता है, ऐसा कुछ है, आई एम नॉट श्योर, आप चेक करेंगे डिस्कवर इंडिया पे पता चल जाएगा। ओके, एंड देन लेट्स मूव टू नेक्स्ट। सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन वाज फाइंड आउट द एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ माइग्रेशन। सेम क्वेश्चन, ओके, इसका सेकंड पार्ट था ये। तो इसमें शॉर्ट नोट्स में लिखेंगे आप सिर्फ causes number 1, overcrowding of people. We are talking about heading is environmental consequences of migration. Okay, उसका आंसर का पॉइंट नंबर 1, overcrowding of people. दिल्ली में देख लो बहुत बुरा हाल है, ओवरक्राउडिंग है, यहाँ पर बहुत पॉपुलेशन है, 11,000 person lives in per square kilometer. Density of population is the highest in India, okay, in any city. Number 2, unplanned growth of city. Unplanned growth of cities, okay, which develops slums, which develops slums. Number 3, overuse of natural resources. Overuse of natural resources, okay, so they move towards depletion. Next point, pollution of water, ये प्रॉब्लम है, खराब हो रहा है पानी। एयर पोल्यूशन, अगर हम इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस की बात करते हैं, सीधे दिल्ली के बारे में सोचो, अगर आपको आंसर नहीं आता है तो। इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस की बात करेंगे, अगेन थिंक फॉर दिल्ली, यू विल गेट द आंसर फ्रॉम दिस सिटी। नेक्स्ट इज नॉइज पॉल्यूशन, यू हैव इन दिल्ली। आजकल बड़ी शांति है, चिड़ियों की आवाज आती है ना, पिछले 28 साल में तो आई नहीं, लेकिन अब चिड़ियों की आवाज आ रही है, नई नई बर्ड्स आए, सेइंग 3 के तो मैंने फोटो भी क्लिक किया, एक का शायद उसको डाल रखा वीडियो, ओके, डिस्कवर ज्योग्राफी चैनल पर, which is my channel, okay. Next is disposal of sewage, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है, ये एनवायरनमेंट को खराब करता है। गाजीपुर में बहुत बड़ा टीला, उसके ऊपर सारा डिस्पोजल डाला जाता है, और इधर जहांगीरपुर से जैसे आगे निकलते हैं तो राइट हैंड साइड पे बहुत बड़ा पहाड़ बना दिया है ना, माउंटेन ऑफ गार्बेज। इतना वेस्ट है दिल्ली में, which makes the mountain, ऐसे बहुत सारे माउंटेन हो गए, तो सब we can see here Nainital and Kullu Manali are making जाएंगे उतनी बड़ी। And management of solid waste, ये हमारे यहाँ भी माइनस पॉइंट है, we are unable to manage the solid waste, वही जो पहाड़ बने हैं,
ठीक है. So this question is completed and the 4 minutes end. Okay, let's take one more question. थोड़ा सा हटके हैं, ज्यादा सेम क्वेश्चन ही हैं. Okay, define the term migration. Define the term migration. Explain any 2 economic and 2 demographic consequences of migration in India. ये सबसे आसान क्वेश्चन होता है. वो कुछ आपसे पूछ नहीं रहा, वो सीधे बता रहा है आपको कि 2 इकोनॉमिक 2 डेमोग्राफिक consequences of migration आपको बताने, इससे ज्यादा आपको नहीं बताना. ठीक है. And define the term migration or migration की term बताने. तो 1 + 2 + 2 it makes 5. So this question is for 5 marks. तो ये आप कर लेंगे. कल आपने बहुत सारे पॉइंट्स लिखे थे. And once again, whatever questions I am giving you while teaching the chapters, please note down in your register copy. जो भी आप बनाएंगे ब्लैक कलर से लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे क्लास वर्क. ठीक है. कल भी शायद बोला था आपको आंसर ब्लू से. और अब ये जो क्वेश्चंस हो रहे हैं एनसीईआरटी के बैक वाले भी करने हैं, वो अपने आप करेंगे. और ये जो मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रहा हूँ क्वेश्चन बैंक एंड होम असाइनमेंट. ठीक है. और ये आप ग्रीन कलर से लिखेंगे क्वेश्चन एंड आंसर, ब्लू कलर से जब आपके पास रजिस्टर कॉपी आ जाएगी. अभी आप कहीं भी लिखते रहिए, कैसे भी करते रहिए, बट प्लीज क्वेश्चन डाल दोगे बहुत अच्छी बात है. अदरवाइज यू हैव टू वॉच, पूरा चैनल देखिए, पासवर्ड करिए, जैसे क्वेश्चन पूछते जाऊँ वहाँ पर वो आप नोट करिए. ठीक है. एनीथिंग एनीवन वांट टू से बिफोर एंडिंग द क्लास? एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी? So hopefully from the next week we will go with that नया system start कर रहे हैं Microsoft Teams. It's very tough for us, for teachers. उसके आपके ग्रुप बनाना, उसको शो करना, बुक करना, very बहुत टफ है. 3-4 दिन से सारे टीचर्स परेशान हैं और कंबाइन नहीं हो रही, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं. तो जूम पे भी ठीक चल रहा है सब कुछ. लेट अस सी, जब उस पर जाएंगे तो वहाँ की कैसे होगा, क्या होगा, देखेंगे. यस कुछ कर बोलो बेटा. व्हाट डू यू वांट टू से? सर आप कब से क्लास लोगे फिर माइक्रोसॉफ्ट पे? बेटा जब मुझे आ जाएगी, अभी मुझे नहीं आ रही कुछ भी करना. आई एम ट्राइंग. अभी तो सारे टीचर्स लगे पड़े हैं. जब होंगे सब एक साथ ही होगा, है ना. और जिसका हो जाएगा वो कर लेगा, क्योंकि इट्स टेक्निकली इज वेरी टफ. जूम सबसे आसान है, सबसे इजी है. लोग वैसे परेशान हो गए कि चुरा लेगा. ऐसा कुछ नहीं है. आप लोग आपके घर में 4-4-5 मोबाइल्स होते हैं, तो आप वो मोबाइल यूज करो जिसपे कोई भी बैंक की ट्रांजेक्शन नहीं होती, कोई भी बैंक की ऐप नहीं होती है ना. तो पापा का मोबाइल नहीं होना चाहिए. मम्मी नहीं करते होंगे, आप नहीं करते हो, ऐसे हमारे लिए भी. लेकिन ऐसे टीचर्स जो मोबाइल पे कर रहे हैं, तो उसमें अगर बैंक ऐप है तो थोड़ा रिस्की है. इसलिए इससे शिफ्ट करके कंप्लेन आई नो कि गवर्नमेंट की एडवाइजरी, तो वी आर शिफ्टिंग फ्रॉम देयर टू माइक्रोसॉफ्ट टीम्स. आई डोंट नो वो कितना सेफ है, मुझे भी नहीं पता, बट इट्स वेरी टफ. आपकी क्लासेस बनाने हैं, ग्रुप्स बनाने हैं, ज्योग्राफी का अलग, हिस्ट्री का अलग. एंड बीओसी को ज्वाइन कर रहे हैं, ज्वाइन ही नहीं हो रहा है अभी तक. तो लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स आर देयर. लेकिन चल रहे हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं. वो हो जाएगा होपफुली फ्रॉम मंडे शायद हम कर देंगे. और मैं अभी ट्रायल क्लास करूंगा, देखता हूँ अगर आज मेरा कुछ सेटलमेंट अगर बन गया कुछ. आप लोगों ने कर लिया सबने या कुछ? सर डाउनलोड तो कर लिया. हाँ तो उस पर तो ठीक है, देखते हैं. मैं अगर आज मेरा ऐसा बन गया तो मैं आज शाम को कोई क्लास आपको 10 मिनट के लिए 5 वैसे थोड़ा सा देखने के लिए कि आपको भी आवाज़ कैसे आ रही है, मुझे कैसे आ रही है ना, सीखने के लिए मैं भी कोशिश करूँगा. ट्रायल क्लास एक छोटी 5 मिनट की, 10 मिनट ज़्यादा. ठीक है. ओके, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू. प्रशांत साहब वांट टू से समथिंग? यस बोलो, अनम्यूट कर लो अपने आप को, बोलो बेटा. सर कल शिखा हमने ली थी रात को हमारे 10:30 बजे ये वाली ट्रायल क्लास, उस पे वो नहीं हो रही है स्क्रीन शेयरिंग बिल्कुल भी. स्क्रीन शेयरिंग नहीं हो रही है. ठीक है. लैपटॉप से कर रही थी मैं, मैम फोन से कर रही थी, लेकिन नहीं हो पा रही थी स्क्रीन शेयरिंग. और साउंड? और सर जैसे इस टाइम पे आपको सारे स्टूडेंट्स दिख रहे हैं ना ऊपर लैपटॉप पे, उसमें बस आपको 4 स्टूडेंट्स ही दिखेंगे और कोई दिखेगा ही नहीं. मैं तो उसमें गैलरी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है. हाँ उसमें प्रॉब्लम आ रही है. फोन पे तो बहुत प्रॉब्लम है उसमें. और लेकिन सर लैपटॉप पे भी नहीं हो रहा. उनके पास मैक है, मैक पे नहीं हो रहा है. बाकी जो नॉर्मल लैपटॉप है सब पे हो रहा है ना. जो एप्पल वालों के हैं, एप्पल पे काम नहीं कर रहा है. तो ये प्रॉब्लम तो आ रही है. तो वही है, जैसा स्कूल करेगा करेंगे. चलो आपकी क्लास हो चुकी है, इसका मतलब आप सबने कर लिया लॉगिन इस पे माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे. सर कल तो बस थोड़े से ही बच्चे थे, मैम ने 10:30 बजे क्लास रखी थी रात को.